Welcome to the Medical Marvel podcast. We have a today from Livewell Hospital, Dr. Hitesh Patel. Welcome to the podcast, sir. Thank you. Good. Sir, we would like to know what have changed in the past 10 years in a medical practice or hospitals. In past 10 years, we have changed many things like the infrastructure have been changed, the technology has been changed. Now the new devices are there to give the better results. And in terms of technology, we have changed from the normal communications to the digital communications to the patient, even pre-operatively and post-operatively. So, as you deal, sir, a post-operative patients, okay, one task or one activity, what you do, which will bring your better outcome for your patient and for your hospital also. To improve the outcome of the patient post-operatively or post-procedure, those patients who have operated at our hospital or those who have taken some treatment at our hospital, we keep follow-up with the patients. Like if we have advised some diet, if we have advised some weight loss, if we have advised some exercise, then we do follow-up regularly. Not daily, but regularly. I can say at every 5 days, every 10 days, or whatever the goal the patient have. So we do that follow-up. If the patient's goal is to lose the weight, then we do follow for like 3 to 4 months how much she has or he has lose the weight. If we wants the patients to do exercise, then we ask them to do exercise daily and we keep the follow up regularly. Like we call them every weekly and we ask them exercise schedule. If they are not doing that exercise at home, we ask them to go to the physio. Our physio continuously calling them, and once the target is achieved, like once the patient is satisfied with the results, once that he or she is doing regular exercise, then we stop the follow-up. So you will track the data that which patients what is advised and do they are following or not. Of course, yes. While Without sending- checking the data or without calling them, it's very difficult. We motivate our patients also that if we don't follow up, they should call us because this is their life. हॉस्पिटल तो एक काम करती है, 10 ऑपरेशन करती है, 100 ऑपरेशन करती है महीने में, लेकिन पेशेंट को हम समझाते हैं कि आपके लिए तो एक ही ज़िंदगी है। तो अगर हम कहीं भूल जाते हैं तो आप हमें फॉलो अप करो, आप हमें भी फ़ोन करो ताकि हम आपको मोटिवेट करें और आपका रिजल्ट बेहतर हो। So, जो डॉक्टर्स नहीं कर रहे हैं आज के तारीख में बेसिकली ना सर्जरी, आप उनके लिए क्या एडवाइस करेंगे? मैं किसी को एडवाइस देने के लिए तो नहीं बोल सकता कि करो नहीं नॉट इन द करो, टाइम्स लेकिन एंड एजुकेशनल लेकिन पर्पस। मैं बोलूँगा कि सारे पेशेंट्स को अच्छे से फॉलो अप करो और मैं पेशेंट को भी बोलूँगा कि ये आपकी ज़िंदगी है। देखो एक डॉक्टर के पास 1000 ऑपरेशन होते हैं एक साल में, वो 1000 ऑपरेशन करेंगे, उसको हज़ारों के रिजल्ट आएंगे, 600 के रिजल्ट आएंगे, 800 वाले अच्छे एक्सरसाइज करेंगे, उनको फ़र्क इतना नहीं पड़ेगा जिनकी आपकी लाइफ में फ़र्क पड़ेगा। बिकॉज एज ए पेशेंट यू हैव ओनली वन लाइफ, तो आपको आपका फॉलो अप डॉक्टर से बहुत रेगुलरली लेना चाहिए। गुड। सो आज आपको प्रैक्टिस करते हुए बहुत साल हो गए, आज अगर कोई प्रैक्टिस शुरू कर रहा है उनके लिए आप क्या एडवाइस करते हैं, क्या करना चाहिए टू ग्रो प्रैक्टिस? दिस इज द बेस्ट टाइम टू ग्रो द प्रैक्टिस। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि यंगस्टर जो आएंगे अभी आएंगे 2026 अप्रैल में जो प्रैक्टिस करेगा वो कुछ ही सालों में मेरे से बहुत आगे जाएगा। वो 5 साल के बाद 10 साल के बाद इतना आगे जाएगा जितना उसने सोचा नहीं होगा। बट यू हैव टू कीप द ट्रस्ट ऑफ द पेशेंट, मतलब सही प्रैक्टिस करो, जो भी रिजल्ट ओरिएंटेड है वो प्रैक्टिस करो। दूसरा है कि पैशन के साथ प्रैक्टिस करो। कभी आपका दिन खराब है, कभी आपका मूड खराब है, तो पैशन के साथ प्रैक्टिस करो और सही पेशेंट चूज़ करें। ऐसा नहीं कि ये पेशेंट सही नहीं है तो भी उसका कोई ट्रीटमेंट करें। वेट फॉर द राइट पेशेंट। समटाइम्स वी डोंट गेट द पेशेंट फॉर लाइक नेक्स्ट 10 days, दैट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। वेट फॉर द राइट पेशेंट, राइट इंडिकेशंस एंड वो ट्रीटमेंट दोगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हर पेशेंट को आप ऐसे समझोगे कि आपके घर के कोई मरीज को ट्रीट कर रहे हो तो आपका जो रिजल्ट है वो बेहतर होगा। जैसे कि कभी फॉर एन एग्जांपल स्पाइन पेन लेके कोई पेशेंट आता है, मेरे पास आता है, उसको सर्जरी इंडिकेटेड है, करनी चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सर्जरी नहीं कराएगा तो उसकी लाइफ ख़राब हो जाएगी। एज है 70, तो मैं उसको एडवाइस करता हूँ कि अगर आप यही लाइफ में नॉर्मल माइल्ड पेन मॉडरेट पेन के साथ जी रहे हैं तो आपको सर्जरी नहीं करानी है, तो दैट्स ऑल्सो ए फाइन डिसीजन। तो ऐसा ट्रू प्रैक्टिस या ट्रस्ट वर्दी प्रैक्टिस या उसको बोलोगे कि सच्ची प्रैक्टिस करेंगे तो आपका आउटकम रेगुलरली अच्छा रहेगा। जब आप मार्केट में जाओगे, दूसरे पेशेंट को मिलोगे, कोई सोशल फंक्शन में जाओगे तो आपके अच्छे अच्छे रिजल्ट वाले पेशेंट ज़्यादा रहेंगे, तो आपकी ज़िंदगी में खुशी रहेगी। तो लुक आफ्टर द पैशन एंड रिजल्ट्स विद द पेशेंट। सो एक डॉक्टर्स है ओके जो लाइक पेशेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है सर्जरी करवाना, ओके, सो यू डायग्नोस एवरीथिंग एंड इट इज़ अ मैंडेटरी टू डू सर्जरी एंड पेशेंट रेडी नहीं है, उसको कैसे काउंसल्स करते हैं? क्या 1 और 2 स्टेप्स अगर आप यंगस्टर डॉक्टर को गाइड करेंगे ताकि पेशेंट के लिए भी बेनिफिट्स रहे कि उनकी लाइफ और वर्स नहीं हो या सिचुएशन और वर्स नहीं? देखो एक्चुअली हमें पेशेंट को रेडी नहीं करना है,
मैं तो बोलता हूँ पेशेंट को कभी रेडी ही नहीं करना है, पेशेंट को एजुकेट करना है ओके, कि ग्रेट। ये सर्जरी आपके लिए ज़रूरी है, आप मेरे से कराओ, आप मेरे से भी बेहतर कोई हॉस्पिटल में कराओ, या कोई आपका फाइनेंशियल कंडीशन प्रॉब्लम में है तो कोई सिविल हॉस्पिटल में जाके कराओ। आई डोंट कीप देम कि आप रेडी हो जाओ। मैं बोलता हूँ आप एजुकेट हो जाओ कि आपका डिसीज़ क्या है, आप नहीं कराओगे तो क्या होगा, कराओगे तो क्या होगा। आई नेवर पुश द पेशेंट फॉर द व्हाट इज द सर्जरी। वन डिफरेंट जो फोर्स कर रहा है और जो एजुकेट कर रहा है, दोनों में क्या डिफरेंट होता है? व्हाट इज द वन माइनर डिफरेंट वेयर यू आइडेंटिफाई कि आप पुश कर रहे हो पेशेंट्स को और आप एजुकेट कर रहे हो? दोनों एक ही है, दोनों का खाली तरीका अलग है, बाकी जिसको अपने So, अपने हिसाब से जो जाता है वो वॉइस करे। टोन डिफरेंट होता है? वॉइस टोन डिफरेंट होता है या इंटेंट डिफरेंट? इस सारी नॉर्मल कंट्रोवर्सी में पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। Okay. अपने हिसाब से अच्छी प्रैक्टिस करते रहो, आप खुश रहोगे हमेशा। So thank you very much, sir, for the My Medical podcast, and thank you adding for value to Doctor community. या थैंक यू Thank you. एवरीवन।